Hello students and the viewers. Today onwards we will be having practice exercises of all the tenses. We already completed all the tenses. Now the practice exercises will be there, and these are very important. And I would request those who are new in this channel, ki please subscribe the channel. And as you know, my name is GL Kaviraj, and in my channel it is already written Kaviraj Sir in bracket. Reason is this channel I found some other persons are also using in their by their own name. I don't know who are they, and I don't want to disclose all these things. Thing is that if you want my videos, then you have to follow my channel, that is KCC English Education, okay, in YouTube channel. And moreover, my name and my contact number, that is more important to contact me directly. Thing is that now onwards our practice exercises will be there more. अभी से हमारी practice exercise of all the tenses and modals. How can we still those who are confused कि हम tense तो हमने सीखा है, tense you learn the tenses, present tense you know, 4 present tenses are there, 4 past tenses are there, 4 future tenses are there, but how to use them, where to use them, यहाँ पे confusion है. हम कैसे जवाब देंगे? कोई भी question पूछते हैं तो how can I identify कि which tense and what will be the right answer. तो ये सारे सब कुछ समझने के लिए in sequence serially you have to follow the videos. Those who are not attending the class directly or those who are having online classes, they are also getting not a problem, but those who are listening to watching the videos, this will be helpful to them. तो समझना पड़ेगा आपको कि हम if you are unable to speak English, if you don't know how to answer the right answers of the questions, if the interviewer is asking any question, so you have to first of all identify on which tense it is there. So in the easy way, if you follow this chart, in this way if you follow, then your concept will be, slowly the concept will be clear. What happens, in English, we make the sentences, the sentence formation is there SVO, that is called subject verb object pattern in English. Subject, verb, then object. Now see the sentences. These are practice exercises of the tenses. Now simple present tense. Simple present tense is our today's topic, is based on simple present tense. Try to understand it. Now subject, these are subjects जिसे हम SVO पैटर्न में बता रहा था कि SVO subject verb object. So this is your subject and this is verb. This is S, V, and this is object. SVO pattern, subject verb object. Now question comes, if here it is written the subjects are what? Who are the subjects? Subject कौन है? The subjects are I, we, you, he, she, it, they, any person regarding whom you are talking to. जिसके बारे में आप बातें कर रहे हो वो सब्जेक्ट है. My father, my mother, my brother, my sister, my friends, कोई भी सब्जेक्ट हो. 5 nouns are there. Okay, proper noun, common noun, collective noun, material noun, and abstract noun. All are the subjects. 10 pronouns are there. All are the subjects. Like your I, we, you, he, she, it. There's so many pronouns are there. So mostly your personal pronouns we get as subjects. Personal pronouns. Okay, you should go through the videos of basic grammar. In basic grammar, every details it is given. Okay, parts of speech. Basic grammar means parts of speech. All the parts. But 36, 37 parts are there. Noun, pronoun, adjective, 5 nouns, 10 pronouns. Without knowing all these, you will not get complete knowledge. That's why it is necessary. ये आपको जानना बहुत जरूरी है. Directly, if you think no, I will learn the tenses and I will speak English. So it is not possible. Not possible means you can do so, but mistakes, chances of mistakes are more. ज़्यादा मिस्टेक होने का चांसेस होते हैं. इसीलिए हमें जानना जरूरी है कि नाउन है क्या, कितने नाउन है, व्हाट आर द यूजफुलनेस ऑफ नाउन. नाउन लगाते कहाँ है, कैसे नाउन यूज करते हैं. फिर प्रोनाउन, नाउन के रिप्लेसमेंट क्या होता है इंग्लिश में? प्रोनाउन. ओके, वी डोंट रिपीट द नाउन, वी यूज द प्रोनाउंस. तो कितने प्रोनाउन है, कहाँ पे कैसे यूज करते हैं, इसके जानने के लिए हमें बेसिक पार्ट में जाना होता है. तो दैट्स व्हाई सो मेनी वीडियोज आर देयर. यू कैन गो थ्रू द वीडियोज एंड यू कैन वॉच देम.
So gradually you can gain knowledge. You all of a sudden, yes, I want to speak English, I can speak English fluently. No, it takes time. All of a sudden it doesn't happen. किसी से भी नहीं होता है. कोई भी एश्योर करे हाँ हो जाएगा पक्का कर दे, ये सब नहीं होता है. ओके, इट टेक्स टाइम. अगर होता भी है तो गलत शब्द करके इंग्लिश बोलोगे, दैट इज यूजलेस. ओके, इंग्लिश बोलो तो एक्यूरेसी चाहिए. यू नीड, दैट्स व्हाई ग्रामर इज सो इम्पोर्टेंट. एंड हियर व्हाट आई एम टीचिंग यू, the practice exercises of all the tenses. Now first of all is our simple present tense. You know the rules of simple present tense. I already taught you. The simple present rules is what? Subject plus MB1 plus SES. SES plus object may be there, may not be there. Now question comes, where can we use MB1 plus SES? ACS comes when the subject is third person singular number. ओके, सब्जेक्ट हमें समझना पड़ेगा. व्हाट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये भी हमें जानना जरूरी है. पर्सन्स हमें समझना पड़ेगा. व्हाट आर द पर्सन्स? फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इज आई. दिस इज फर्स्ट पर्सन. देखो आई सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन. तो व्हेनेवर द सब्जेक्ट इज आई, वी, ही, आई, वी, यू, दे, वी डोंट यूज एसीएस फॉर्म ऑफ द वर्ब. We use ACS form of the verb when the subject is third person singular number. As I was telling you, first person, second person, third person. So first person two, singular and plural. I and we. I is singular, we plural. Similarly, you, second person. You singular, you means you singular, you means you all. तो you में सिर्फ इट नोशंस जैसे मैं बता देता हूँ सभी को, ऑल ऑफ यू. तो ऑल यू हमेशा हम नहीं लगाते, सिर्फ यू मतलब प्लूरल भी होता है. ओके, सिंगुलर प्लूरल बोथ यू. तो यहाँ पे भी एस नहीं लगेगा. फर्स्ट फॉर्म में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों में नहीं लगेगा. यू में भी सिंगुलर प्लूरल में एस फॉर्म नहीं लगेगा. लगेगा कहाँ? थर्ड पर्सन में, वो भी ही, शी, इट सिंगुलर नंबर हो तो. थर्ड पर्सन में क्या होता है? सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर में कौन कौन है? ही, शी, इट, एनी सिंगल नेम. और एक बात ध्यान से सुनो कि एनी सिंगल नेम में सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं है, पर्सन्स नहीं है, ये नॉन लिविंग. ओके, ए मार्कर. इट वर्क्स वेल. मैंने बोलो क्या इट वर्क वेल? गलत. इट क्यों? इसको मैं इट बोला कि द मार्कर वर्क्स वेल, ठीक काम करता है. तो वर्क के साथ हमने क्या जोड़ा? एस. क्यों? क्योंकि ये करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. दैट्स व्हाई ही, शी, इट. इट मतलब नॉन लिविंग और स्मॉल क्रिएचर्स के साथ हम एसीएस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं. ये हमें समझना पड़ेगा. ओके, एंड दे प्लूरल नंबर है. पर्सन कौन सी है? थर्ड पर्सन. प्लूरल नंबर के साथ नहीं लगेगा. ओके, तो जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है आपका, तब तक आप गलती करते ही जाओगे. इसलिए एज अर्ली एज पॉसिबल वी शुड नो द पर्सन्स. ओके, जेंडर, पर्सन्स. शी आता है जेंडर में, मैस्कुलाइन जेंडर ही. दे में कोई जेंडर नहीं है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है दे में. एनीवे, नाउ सी, लेट अस सी द subjects. I, we, Rohit, the teacher, the doctor. These are the subjects written here. ठीक है. S, we, O. Let us see we. We means verb. Verb में क्या है? Learn. I learn. तो object you have to create of your own. तो I learn, मैं learn करता हूँ. इंग्लिश कैसे बोलोगे? हमें learn by heart नहीं करना है, ना कि ट्रांसलेशन करना है. तो करना कैसे? इंग्लिश बोलूंगा कैसे? हमें सब्जेक्ट थिंक करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक सब्जेक्ट. हमने सब्जेक्ट यहाँ पे ले लिया, ये सारे सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमने वर्ब ले लिया, लर्न. तो आई लर्न, मैं लर्न करता हूं. आई लर्न के मतलब है मैं लर्न करता हूं. आप खुद थोड़ा सोच के देखो क्या लर्न करते हो? माई लेसन. आई लर्न माई लेसन. तो आई लर्न माई लेसन, मैं मेरा लेसन लर्न करता हूं. तो ये रेगुलर बेसिस पे होता है, इसीलिए एवरी डे यू कैन यूज. आई लर्न माई लेसन एवरी डे. हर रोज का काम है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये रेगुलर रूटीन वर्क शो करता है. जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, ये सारे इसी टेंस में आता है. आई गो,
आई के साथ गो, ओके, आई लर्न माई लेसन, आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, वॉट एवर यू डू एवरी डे डेली रूटीन वर्क, इट कम्स इन दिस टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हमें इसमें ध्यान देना है, इसमें एस एस लगता है या नहीं लगता है, ये जरूरी है। तो फर्स्ट सेंटेंस इज आई लर्न माई लेसन, व्हाट विल बी द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ दिस, इसको फिलहाल रहने दो, इस ओनली आई का जो पॉजिटिव सेंटेंस है आई लर्न माई लेसन, तो इसको अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, आई नॉट लर्न, नहीं, आई डोंट लर्न। ये हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल्स है, हमें डोंट लगाना ही पड़ेगा, डू नॉट, डजंट, रिमेंबर, रूल्स देख लेना आपको, दैट्स व्हाई आई ऑलरेडी टॉट यू, नाउ योर ड्यूटी इज टू लर्न द रूल्स, ओके, यू नीड टू लर्न द रूल्स, नहीं तो गलती करोगे। आई नॉट नहीं है, आई डोंट लर्न माई लेसन एवरी डे, ओके, आई डोंट लर्न माई लेसन, मैं हर रोज लर्न नहीं करता हूँ। डू आई लर्न, अपने आप को क्वेश्चन पूछना तो ठीक नहीं है, फिर भी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी टेंस का एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, रूल्स के एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हो। डू आई लर्न माई लेसन, क्वेश्चन मार्क। डोंट आई लर्न माई लेसन, क्या मैं लेसन लर्न नहीं करता हूं, क्वेश्चन मार्क। नाउ WS फैमिली, WS फैमिली देखो, सिक्स सभी का सिक्स सेंटेंसेस होंगे। व्हेन डू यू लर्न योर लेसन, व्हेन डू आई लर्न माई लेसन, देन यू हैव टू टेल द टाइम। आई लर्न माई लेसन, फर्स्ट पहला सेंटेंस देखो, आई लर्न माई लेसन इन द मॉर्निंग, व्हेन का जवाब है। वेयर डू यू लर्न योर लेसन, आई लर्न माई लेसन एट होम, एट द इंस्टीट्यूट। यानी सारे WS फैमिली का हल आपके इसी आंसर में है। जितने सेंटेंस 26 sentences are there, but you have all the questions in that, you have the answers also. अरे समझ में? Now let us see. Next subject is our we. We go. हम जाते हैं। कहाँ जाते हो आप? या तो ऑफिस जाते हो, मार्केट जाते हो, कहीं पे जाते हो, वॉक के लिए जाते हो, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, तो क्या, व्हाट इज योर सेंटेंस? आई गो टू ऑफिस, आप ऑफिस जाते हो, यू आर वर्किंग, तो आई गो टू ऑफिस एवरी डे, यू कैन ज्वाइन, ऐड कर सकते हो। वो क्या है, आई गो टू ऑफिस एवरी डे इज योर एडवर्ब, ओके। ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, मेनी टाइम्स वी डोंट गेट द ऑब्जेक्ट, वी गेट द एडवर्ब्स ऑल्सो, दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंस कहते हैं उसको। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, एडवर्ब हो सकता है, एडवर्ब ना भी हो सकता है, दैट इज ऑप्शनल। सब्जेक्ट एंड वर्ब इज अ मस्ट। ओनली इफ यू से आई प्ले, इट्स ओके, फुल सेंटेंस, मैं खेलता हूं, इट्स ओके। क्या खेलता हूं, जरूरी नहीं है कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, फुटबॉल खेलता हूं, लेकिन मैं खेलता हूं, दैट्स ऑल। इट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट नील, ओके। ऑब्जेक्ट कोई हमें मैंडेटरी नहीं है, बट सब्जेक्ट एंड वर्ब दिस टू आर मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी। सब्जेक्ट हमारी ये कंपल्सरी, जिसके बारे में बोल रहे हो ना हो तो फिर सेंटेंस बनेगा कैसे? फिर मेन वर्ब इज कंपल्सरी, ओके। नाउ यू सी, वी गो टू ऑफिस एवरी डे, वी गो टू ऑफिस, हम रोज ऑफिस जाते हैं। रिमेंबर, यहाँ पे ताती थे, वी गो टू ऑफिस एवरी डे, व्हाट विल बी द नेगेटिव? डोंट गो, हम नहीं जाते हैं। गलती से भी हम गए जा रहे हैं ऐसे नहीं सोचना है, क्योंकि ये केवल ताती के ऊपर बेस्ट है, ओके। एंड आइडेंटिटी इन हिंदी, हिंदी में अगर इसको थोड़ा सा समझने के लिए आप इस्तेमाल करें तो गलत नहीं है, ओके। बेटर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आप हिंदी का अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू इसमें आप यूज कर सकते हो, बट डोंट ट्राई टू ट्रांसलेट, ट्रांसलेशन हमें नहीं चाहिए, ओके। आई डोंट गो टू ऑफिस एवरी डे। अब बोलते हो नहीं, रोज मैं नहीं जाता हूँ, घर से भी काम होता है, करता हूँ ऑनलाइन में, सो आई डोंट गो टू ऑफिस एवरी डे। इंट्रोगेटिव, डू आई, डू यू, आई वी यू देख कुछ के साथ उसमें डू यूज करो। डू आई गो, डू यू गो टू ऑफिस एवरी डे, तो योर आंसर इज रिटन हियर, फर्स्ट सेंटेंस। सिर्फ यस जोड़ दो, यस आई गो टू ऑफिस एवरी डे। नेगेटिव हो तो नो, आई डोंट गो टू ऑफिस एवरी डे। देखो, तो ये हमारी क्वेश्चन इसमें शामिल है, आंसर भी इसी में है। हमें आई एम नॉट गोइंग,
आई ये सारे नहीं चलेगा। हम जो क्वेश्चन पूछा गया डू यू गो, तो आई एम नॉट गोइंग, ये क्या जवाब है? डू यू गो, ओके, तो डू से क्वेश्चन पूछा है, तो समझना होगा दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यस नो में आपको जाना ही है, क्योंकि डू डज से क्वेश्चन होने से हमारी आंसर यस नो से आता है। यस और नो दोनों में से एक ही होगा ना। क्या आप रोज ऑफिस जाते हो? तो यू नो दैट यू एवरी डे यू गो और नॉट। सो मेनी पीपल दे डोंट गो, दे डू वर्क फ्रॉम होम। सो यस बोलो, आई यस आई गो, नहीं तो नो आई डोंट गो। ओके, इन दिस वे। सो व्हेन डू यू गो, देखो डोंट डू वी गो टू ऑफिस एवरी डे, नेगेटिव इज वी डोंट गो टू ऑफिस एवरी डे। डू वी गो टू ऑफिस, डोंट वी गो टू ऑफिस, व्हेन डू वी गो टू ऑफिस, व्हाई डोंट यू गो टू ऑफिस। ओके, 4 क्वेश्चंस एंड 2 आंसर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, इनमें सब कुछ शामिल है। ओके, यू गॉट इट। नाउ रोहित एंड प्ले। तो रोहित प्ले, यहाँ पे एस एस फॉर्म नहीं लिखा है, आपको सोचना है कि यहाँ पे मैं यस लगाऊं या नहीं लगाऊं। प्लेज, रीजन इज एज आई टोल्ड यू कि पर्सन समझना जरूरी है। पर्सन, रोहित इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, रोहित प्लूरल नंबर नहीं है, रोहित एक ही व्यक्ति है। तो रोहित, यहाँ पे एस जोड़ो, रोहित प्लेज क्रिकेट, फुटबॉल, व्हाट एवर इट इज, रोहित प्लेज क्रिकेट। ओके, नाउ यू सी व्हाट इज द नेगेटिव। रोहित doesn't play, we call it does not or doesn't. Rohit doesn't play cricket every day, Rohit doesn't play. Now you want to put the question, does Rohit play, या does Rohit plays नहीं होगा, does Rohit play cricket, क्वेश्चन मार्क, does Rohit play, उसका जवाब आप दो, फर्स्ट नहीं तो सेकंड। यस ही, क्वेश्चन जब नाउन होता है, क्वेश्चन में जब हमें नाउन मिलता है, तब आंसर में क्या करते हैं, हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। डज रोहित प्ले, यस ही, क्योंकि यू नो रोहित मैस्कुलाइन जेंडर है, मेल है, तो हमें ही लगाना पड़ेगा। यस ही प्लेज। ओके, व्हेनेवर योर क्वेश्चन इज इन नाउन, योर आंसर शुड बी इन प्रोनाउन। यस ही प्लेज। नेगेटिव आंसर हो तो no he doesn't play, no he doesn't play। where does he play, WS family, where does he, कहाँ खेलता है? he plays in the stadium, in the park, in the stadium। okay, when, तो when तो place, when does he play, he plays in the evening, in the morning, जो भी टाइम है। सारे WS फैमिली का आंसर लास्ट में जाके जुड़ जाएगा, ऐड कर दो, बस हो गया। राइट, नाउ लेट अस सी, रोहित हो गया। देन कम्स द टीचर। आपको थिंक करना पड़ेगा वेदर इट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल। टीचर, टीचर्स नहीं, गलती से आप सोच रहे थे टीचर में प्लूरल होगा, नहीं, द टीचर एक ही टीचर के बाद बोला जा रहा है यहाँ पे। द टीचर टीचेस, टीच तो ऑलरेडी है, इसके साथ हमें ईएस जोड़ना है। द टीचर टीचेस, द टीचर टीच बोलोगे गलत है, द टीचर टीचेस इन द क्लास, द टीचर टीचेस इंग्लिश, और कुछ भी जो टीचर टीचेस क्या पढ़ाते हैं तो वही बोलना है, टीचेस जरूर लगाना है, द टीचर टीचेस। ओके, तो व्हाट इज द नेगेटिव, द टीचर डजंट टीच। डजंट लग गया तो फिर टीच का यस हट गया, सिर्फ टीच हो गया, द टीचर डजंट टीच। राइट, नाउ इंटरोगेटिव बनाओ इसको, डज द टीचर टीच, नेगेटिव इंटरोगेटिव, डजंट द टीचर टीच, डजंट द टीचर टीच। नाउ WS फैमिली, व्हेन डज द टीचर टीच, व्हेन डज द टीच, तो आपको वहां पे जोड़ना पड़ेगा द टीचर टीचेस इन द मॉर्निंग, द टीचर टीचेस इन द इवनिंग। जैसे व्हेन मतलब टाइम पता है, वेयर डज द टीचर टीच, the teacher teaches in the institute। okay, when where means place name, when time। okay, in this way any suitable WS family, accordingly we have to answer, that part will come at the end। remember subject, verb, object, उसके बाद हमारी adverb phrase और adverb। object is nil, then only adverb or adverb phrase। ये हमारी
सेंटेंस फ्रेमिंग स्ट्रक्चर है, यही से हमें फॉलो करना होता है, उल्टा पुल्टा करने से काम नहीं होगा। ओके, इन सीक्वेंस हमें देखना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज नॉट देयर, एडवर्ब इज देयर, यूज एडवर्ब। ओके, नेक्स्ट कम्स योर द डॉक्टर। द डॉक्टर हमारी वर्ब ये क्या है, ट्रीट है, तो सोचो ट्रीट्स, द डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट्स, बस द डॉक्टर ट्रीट्स टू हुम, व्हाट एंड टू हुम क्वेश्चन पुट करे तो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। आई टॉट यू अर्लियर ऑल्सो, द डॉक्टर ट्रीट्स टू हुम मतलब किसको, तो द पेशेंट्स, दैट इज ऑब्जेक्ट। ओके, पेशेंट्स, द डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट्स, व्हेयर व्हेन वो तो आप बाद में लगा सकते हो, तो उसी अकॉर्डिंग लास्ट में उसे जोड़ो। द डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट्स। नेगेटिव, द डॉक्टर डजंट ट्रीट द पेशेंट्स, द डॉक्टर डजंट ट्रीट द पेशेंट्स। इंट्रोगेटिव, डज द डॉक्टर ट्रीट द पेशेंट्स। Negative interrogative, doesn't the doctor treat the patients? WS family, when does the doctor treat the patients? Now you can answer when मतलब time, the doctor treats or he or she, if you know the person personally, आप डॉक्टर को जानते हो तो आप ही शी में भी जवाब दे सकते हो। ओके, मेल फीमेल के फैक्टर हो तो he treats in the morning, when does the doctor treat, he treats or she treats यस लगाना जरूरी है, ये समझ लो। गलती से भी अगर इफ यू आर फेसिंग एन इंटरव्यू, इंटरव्यूअर आपको रिजेक्ट कर देंगे, रखेंगे नहीं, क्योंकि वो ये बेसिक इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, टेंस, एप्लीकेशन ऑफ टेंसेस। इफ यू डू मिस्टेक्स इन बेसिक ग्रामर पार्ट्स ऑफ, कहीं ये आर्टिकल्स डिटरमाइनर्स में बाय चांस मिस्टेक हो गया, दैट इज नेग्लिजिबल। कॉमन अपॉइंटमेंट में, कोई हाई फाई की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, जैसे यूपीएससी, एनडीए, ये सारे में बहुत ही परफेक्ट वे में बोलना पड़ता है। और कॉमन एमएनसी में जॉब करना चाहते हो तो माइनर इंग्लिश जो मिस्टेक्स है नेग्लिजिबल करते हैं, लेकिन ये मेजर ब्लंडर मानते हैं, मेजर मिस्टेक्स मानते हैं, जैसे टेंस में गलती कर रहे हो आप। ओके, सो इफ दैट इंटरव्यूअर इज आस्किंग द क्वेश्चन इन प्रेजेंट टेंस, तो यू हैव टू आंसर इन प्रेजेंट टेंस, बट रिमेंबर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, यस यस फॉर्म, डू नॉट, डज नॉट। ये गलती ज्यादातर इसी में करते हैं, और ये दैट्स व्हाई ओके चांसेस ऑफ रिजेक्शन। हमें ध्यान देना है कि हमें वर्ब में गलती ना करें, फॉर्म्स ऑफ वर्ब एप्रोप्रिएट होना चाहिए। सो नाउ लेट अस सी, द डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट्स, द डॉक्टर, नेगेटिव, डजंट ट्रीट द पेशेंट। इंट्रोगेटिव, डज द डॉक्टर ट्रीट द पेशेंट्स। Negative interrogative, doesn't the doctor treat the patients? WS family, treat the patients, or where does the doctor, not only when is not the WS family, remember WS family में हमारे so many where possible है, कहाँ treat करते हैं, where does the doctor treat the patients? The doctor treats the patients in the hospital. Okay, so whatever the place, when, how, all these answers are there in this, you can add. Okay, now this is your thereafter in this way what should you do, आपको क्या करना चाहिए, you can make us the some sentences of your own, इससे क्रिएटिविटी बढ़ता है। नहीं तो केवल इसी को फॉलो करो लिखो नहीं, you can think of your own sentence। कैसे, मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट बनाऊं, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, बनाओ एक सब्जेक्ट ले लो, वर्ब एंड यूज करो, वेदर द एप्रोप्रिएट फॉर्म क्या होना चाहिए, इसका एस फॉर्म है या नहीं। सो देयरआफ्टर यू कैन मेक द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। Okay, you should do it. Okay, that is your homework that you can do. Then your simple present tense, if you can do all this way, in this way, then your present tense, simple present tense will be clear. Then still you need more practice. क्वेश्चन इसी में होता है तो हमको ध्यान से उसको जवाब भी उसी हिसाब से देना होता है। That's why be careful. Okay, and first of all you should learn the rules of tenses. As I taught you all the tenses, you wrote the rules, you note down the rules and you learn by heart. Tense rules को learn by heart करना है। And moreover, forms of verbs, जैसे हमने go लिखा है यहाँ पे, तो उसका went भी हमें जानना जरूरी है, gone भी जानना जरूरी है, goes and going means 5 forms. 5 forms, why? Because all these 5 forms we use in 12 tenses, इसीलिए हमें जरूरी है। Okay, the next will be our present continuous application of all these. The same
we can use all these subjects and verbs in present continuous way. Okay, let us see present continuous.